Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, JK, SSB, UGC, NET, Police, Railway and in other state level exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter-wise discussion and notes forum, chapter-wise question bank with each chapter, chapter-wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, Police, Railway and in the state level recruitments. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवाइज करें each chapter each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज अगर आपको कोई क्वायरी डाउट, अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. And previously we had already completed the part 1 of this chapter in which we had discussed about the concept, functions and types of operating system. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा आप जाके उसको also देख सकते हैं. And today this will be our part 2 and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that are user interface and some important operating systems. So let's start our topic without any delay of time. First of all, what is user interface? जो यूज़र इंटरफेस है इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि हेल्प करते हैं यूज़र्स को टू गिव कमांड्स, टू रन प्रोग्राम्स एंड टू मैनेज फाइल्स एंड सेटिंग इजीली. And without user interface जो यूज़र्स हैं they would not be able to communicate with the computer. So it act as a bridge between the user and the computer, जो कि also allow करते हैं यूज़र्स को to easily use and control hardware like printers, speakers, storage devices along with software like apps, files and setting. So जो user interface है it help users to control both hardware and software easily by using tabs or commands instead of complex programming. And in previous video we had already talked about user interface but in very brief, since ये जो topic है it is very important so we have to discuss it in detail. Anyway, types of user interface include first जो है that is graphical user interface GUI. जो फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसको डेवलप किया गया ड्यूरिंग द ईयर 1970s बाय ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एट Xerox PARC दैट इज Palo Alto रिसर्च सेंटर. एंड Xerox Alto जो है इन 1973 it became the first computer with graphical user interface but at that time it was not sold commercially to the public. Later जो companies हैं like Apple, Microsoft, they started to sell graphical user interface to the people with products like Apple Macintosh 1984 and Windows 1985 onwards. And ये जो graphical user interface है it mainly use pictures and visuals to help users to interact with the computer like windows, icons, menus, buttons rather than typing commands. And here the users they generally interact with the graphical user interface by using devices like mouse to open a folder, touchpad to move the cursor or to click on an app, touch screen to tap on icons or to swipe through menus. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसको यूज़ किया जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिकॉज ये हमें मोर इजी एंड यूज़र फ्रेंडली देखने को मिलते हैं. लाइक इन विंडोज़ we find Windows icons, start menus or taskbars. Then Mac OS we find dock menus, icons and windows. Then in Android we generally use touch screen based GUI with apps, icons, screens, swipes, gestures and menus. As well as in iOS it is similar like Android with touch based icons, gestures. So all of these things जो हैं these are the examples of graphical user interface which make it easy to use. And इसके जो examples हैं that includes Windows operating system. जो Windows operating system है it use graphical user interface like start menu, taskbar, desktop icons as well as Windows जो कि हेल्प करते हैं यूज़र्स को to easily use their computer by clicking the start menu, desktop icons and apps on taskbar. And Mac OS it also use graphical user interface which includes dock, finder, mission control,
And by using these tools, जो graphic GUI है, it help users to control computers easily. एंड इसकी जो एडवांटेजेस हैं दैट आर इजी टू यूज़. जो GUI है ये हमें बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली देखने को मिलता है. मीन्स जो यूज़र्स हैं दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर्स बाय क्लिकिंग ऑन आइकन्स, बटन्स एंड मेनूज विदाउट नीडिंग टू रिमेंबर टाइप कमांड्स एंड विजुअल एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, सिम्बल्स एंड विंडोज, जो कि गाइड करते हैं टू इट इज यूजर्स इन ऑपरेटिंग दिस सिस्टम. देन सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. जो GUI है इट आल्सो अलो यूजर्स टू ओपन एंड टू यूज सेवरल प्रोग्राम्स एट ए सेम टाइम. एंड हर एक प्रोग्राम जो है दैट रन्स इन इट्स ओन विंडो विच मेक्स इट ईजी टू सर्च बिटवीन एप्स लाइक ब्राउजर, वर्ड, म्यूजिक प्लेयर एट्सट्रा, जहाँ यूज़र जो हैं दे कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिसाइज और क्लोज विंडोज एज नीडेड. एंड इसके जो डिसएडवांटेज हैं दैट इंक्लूड्स रिक्वायर स्मूथ सिस्टम रिसोर्सेज. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इट नीड्स मोर मेमोरी, रैम एंड प्रोसेसिंग पावर CPU टू डिस्प्ले विंडोज, ग्राफिक्स, आइकन्स एंड animations, which means it consumes more resources compared to command line interface, जहाँ users जो है they only uses text. And on computers like computers with low RAM or old processors, जो GUI है it makes the system slow or lag, then slower than CLI. For those users who are skilled using command line interface जो है it is more easy for them as compared to clicking through multiple windows, icons, menus in a GUI, because in GUI जो tasks है that requires more steps to perform any task like clicking, opening menu, scrolling, while in CLI जो single type command है that can do the same task quickly and directly. सेकेंड टाइप जो है यूज़र इंटरफेस का दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, CLI. जो कमांड लाइन इंटरफेस है इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस जहाँ यूज़र्स जो है दे इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स इनटू अ टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट. मीन्स in CLI there are no icons, buttons and menus, but rather than जो users है they type specific commands to run programs, to open files or to perform tasks. एंड CLI जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ यूज़र्स जो है दे टाइप कमांड्स टू कंट्रोल द कंप्यूटर. एंड इसको मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स who knows the correct commands as well as by system administrators, programmers and advanced users. So ये जो administrator या ये जो experts हैं they prefer CLI because जो CLI है it's more powerful, fast and flexible, जो कि वो यूज़ करते हैं easily to manage files, configure networks, install softwares, troubleshooting problems and automate tasks. एंड CLI की जो एग्जाम्पल्स हैं इट इंक्लूड्स लिनक्स टर्मिनल विच इज़ ए CLI कमांड लाइन इंटरफेस जिसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इसकी जो कॉमन कमांड्स हैं दैट इंक्लूड्स 1S फॉर लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द करंट डायरेक्टरी, CD फॉर चेंजिंग द डायरेक्टरी और फोल्डर एट्सट्रा. देन विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट एंड PowerShell. These are also text-based interfaces used in Windows to manage files, networks and system setting. And इसकी जो common commands हैं that includes dir for list files and folders in current directory, CD for changing the directory or folder, ipconfg for showing network information like IP address and connection details. And इसकी जो advantages हैं that are faster for experienced users. For those users who have the knowledge of commands, they prefer CLI because जो CLI है ये हमें more faster than देखने को मिलता है clicking through icons and windows. And here जो single line of command है that can perform any task that would take several clicks in a GUI, जो कि सेव करते हैं हमारे टाइम को when doing tasks like file management, network configuration or system updates. Then user uses fewer system resources. जो CLI है it does not need graphics, icons और windows, जो कि यूज़ करता है very little RAM, CPU and storage, जो कि also run करता है smoothly even on older and
लो स्पेक कंप्यूटर्स, जो कि सूटेबल देखने को मिलता है फॉर सर्वर्स एंड सिस्टम्स, जहाँ परफॉर्मेंस और जो एफिशिएंसी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं दे मे फाइंड CLI वेरी हार्ड टू यूज़ बिकॉज उनको रिमेंबर करने पड़ते हैं एग्जैक्ट कमांड स्पेलिंग्स एंड सिंटैक्स, एंड वन स्मॉल मिस्टेक जो है दैट कैन cause the command to fail, or even that can lead to accidental data loss. And unlike GUI, there are no visual buttons or menus that can guide the user. Then requires memorization of commands. To use a CLI, जो users हैं उनको मस्त याद रखने पड़ते हैं correct command spellings and options, because there are no menus or icons जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं. सो फॉर फॉरगेटिंग कमांड और टाइपिंग, सो इससे क्या हो सकता है, इट कैन कॉज कमांड टू फेल और एक्सीडेंटल डेटा लॉस, और ड्यू टू विच जो हमारी टास्क्स होंगी दैट वुड नॉट बी एबल टू वर्क. थर्ड टाइप जो है यूज़र इंटरफेस का, दैट इज़ मेनू ड्राइवन इंटरफेस. जो मेनू ड्राइवन इंटरफेस है, इट अलो यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, that is by choosing options from menus rather than typing commands. And here जो system है it displays a list of choices, and जो users हैं they select their choice by using keyboard, mouse और touch screen, जो कि हमें मोर सिंपल देखने को मिलते हैं देन GUI एंड CLI, जो कि गाइड करते हैं यूज़र्स को स्टेप बाई स्टेप. एंड ये जो मेनू ड्राइवन इंटरफेस है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन ATMs, मोबाइल फ़ोन्स एंड ओल्ड कंप्यूटर्स, जहाँ यूज़र्स जो है दे जस्ट हैज़ टू चूज़ फ्रॉम लिस्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स. एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स ATM मशीन्स. जो ATM स्क्रीन्स हैं दे यूज़ मेनू ड्राइवन इंटरफेस, जहाँ यूज़र्स जो हैं दे चूज़ मेनू विथ ऑप्शंस लाइक विड्रॉ कैश, डिपॉजिट मनी, चेक बैलेंस एंड मिनी स्टेटमेंट. एंड हियर जो यूजर्स हैं दे सिलेक्ट ऑप्शन बाय प्रेसिंग ए बटन, टैपिंग द स्क्रीन और बाय यूजिंग द कीपैड. देन मोबाइल फोन सेटिंग. जो मोबाइल फोन्स हैं दे आल्सो यूज मेनू ड्राइवन इंटरफेस, जो कि हेल्प करते हैं यूजर्स को टू मैनेज सेटिंग्स. एंड हियर जो यूजर्स हैं दे आल्सो चूज मेनूज विद ऑप्शंस लाइक वाईफाई, ऑन ऑफ, डिस्प्ले ब्राइटनेस, सिक्योरिटी पासवर्ड्स, बिलूडेड एक्स्ट्रा. एंड इसकी जो एडवांटेजेस हैं दैट आर सिंपल एंड ईजी फॉर बिगनर्स. जो मेनू ड्राइवन इंटरफेसेस हैं दीज आर दी यूज़र फ्रेंडली, मीन्स जो यूज़र्स हैं दी do not need to remember commands or to understand technical terms. वो simply read करते हैं options को and they choose what they want to do. And here it also guides them step by step through the process easily. There no need to remember commands. Here जो users हैं they simply has to select from the displayed menus options instead of remembering all टाइपिंग कमांड्स, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करते हैं मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन को, स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल और अनस्किल्ड यूजर्स. एंड इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर लिमिटेड फंक्शनलिटी कंपेयर टू GUI एंड CLI. जो मेनू ड्राइवन इंटरफेसेस हैं दीज इंटरफेसेस ओनली परफॉर्म सच टास्क्स दैट आर लिस्टेड इन द मेनू, और अगर टास्क इंक्लूड नहीं होगी इन द मेनू देन जो यूजर्स हैं दे कैन नॉट डू इट. सो जो मेनू ड्राइवन इंटरफेस है इट ऑफर्स fewer features and less flexibility than GUI or CLI. Then can be slow for advanced tasks. जो मेनू ड्राइवन इंटरफेसेस हैं these interfaces requires clicking or selecting through multiple levels of icons. For complex or repeated tasks it can be time consuming, and जो advanced users हैं they may find it slow compared to directly typing in CLI or quickly clicking icons in GUI. फोर्थ टाइप जो है यूज़र इंटरफेस का दैट इज़ टच बेस्ड इंटरफेस. जो टच बेस्ड इंटरफेस है इट अलो यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस बाय टचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली और बाय यूजिंग देयर फिंगर्स और स्टाइलस. और ये जो इंटरफेस है इसको जनरली डिज़ाइन किया गया है फॉर डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ATMs एंड enabled touch laptops. And here जो users हैं they control device through simple finger gestures such as tapping to open
app, selecting items or to press buttons, swiping to scroll through pages, photos and menus, pinching to zoom in or zoom out, dragging to move apps or items. एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स एंड्रॉयड फ़ोन्स एंड आईफोन्स. जो एंड्रॉयड एंड आईफोन्स हैं दे आल्सो यूज टच बेस्ड इंटरफेस, जहां यूजर्स जो हैं दे कंट्रोल्स एवरीथिंग बाय टचिंग दिस स्क्रीन. एंड इसकी जो कमांड एक्शंस हैं दैट इंक्लूड्स टैप, स्वाइप, pinch etc, which makes them easy to use without buttons or a mouse. And Windows touch devices including Windows 10 and 11, both ये जो Windows 10 and 11 है both of these supports touch gestures on devices like touch screen laptops, tablets and surface devices. And इसकी जो common commands हैं that includes to tap, swipe, pinch, drag with finger just like a phone or tablet. एंड इसकी जो एडवांटेजेस हैं दैट आर इंट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली. जो टच बेस्ड स्क्रीन्स हैं दे आर वेरी इजी टू यूज़ बिकॉज जो टच स्क्रीन्स हैं या दीज फील वेरी नेचुरल एंड हियर जो यूज़र्स हैं दे कैन सिंपली टैप, स्वाइप और pinch जस्ट लाइक हैंडलिंग रियल ऑब्जेक्ट्स. इवन जो चिल्ड्रंस हैं और जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड और यूज़ टच बेस्ड स्क्रीन्स. Then convenient for mobile users. जो touch based interfaces हैं these are also perfect for mobile devices like phones, tablets that does not need or require, जिसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है माउस कीबोर्ड की, और जो यूज़र्स हैं दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग विद देयर फिंगर्स, विच मेक्स टच बेस्ड डिवाइसेस मोर फास्टर, easier and portable anywhere whether during walking, traveling or sitting. एंड इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर कैन बी लेस प्रिसाइज देन ए माउस और कीबोर्ड. जो टच स्क्रीन्स हैं दीज आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट एस्पेशली फॉर टाइनी बटन्स और डिटेल्ड टास्क्स. सो ये बहुत ही हार्ड देखने को मिलता है फॉर टच स्क्रीन्स टू परफॉर्म द प्रिसाइज टास्क्स ऑन टच स्क्रीन्स लाइक selecting small items, editing text or graphics design. And here is also a possibility of mistouches, means जो users हैं they may tap wrong buttons by an accident. Then more prone to damage. जो टच स्क्रीन्स हैं these are very delicate, means they can easily get scratched, cracked or broken if the device is dropped or pressed too hard. So जो टच स्क्रीन्स हैं they are very prone to fingerprints, smudges and dust, and that can ultimately affect the visibility and touch response. And to repair these touch screens, broken touch screens, that is really also very expensive. फिफ्थ टाइप जो है यूज़र इंटरफेस का दैट इज़ वॉइस कंट्रोल्ड इंटरफेस VUI. जो वॉइस कंट्रोल्ड इंटरफेस है इट अलो यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डिवाइसेस बाय स्पीकिंग कमांड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग टच a mouse or a keyboard. And here जो devices हैं that listen, that understand and that responds to the user voices. and इसको commonly use किया जाता है in Siri, Apple on iPhones, iPads and Macs, Alexa on smartphones, speakers, Google Assistant on Android phones, Google Home and smart devices. एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स Siri Apple, जो कि हमें देखने को मिलता है ऑन आईफोन्स, iPads और Macs. एंड गूगल असिस्टेंट जो कि हमें देखने को मिलता है ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स एंड गूगल होम एंड ऑन स्मार्ट डिवाइसेस. एंड एलेक्सा जो है इट इज़ फाउंड ऑन अमेजोन, इको एंड अदर एलेक्सा enabled devices, जहाँ यूज़र जो हैं दे स्पीक कमांड्स लाइक कॉलिंग समवन, प्लेइंग म्यूजिक और आस्किंग फॉर वेदर. देन वॉइस टाइपिंग इन मोबाइल कीबोर्ड्स. जो वॉइस टाइपिंग है इट आल्सो अलो यूजर्स टू स्पीक इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन मोबाइल कीबोर्ड्स. एंड ये जो मोबाइल वॉइस टाइपिंग मोबाइल कीबोर्ड्स हैं दीज आर कॉमनली फाउंड इन कीबोर्ड्स लाइक Gboard, Google, iPhone keyboard and others. And microphone icons जो हैं on keyboard that also allow users to dedicate messages, notes और searches. and इसकी जो advantages हैं that are hands free operation. in VUI जो users हैं they can control devices without touching them, जो कि हमें बहुत ही useful देखने को मिलते हैं while driving, cooking और when hands are busy. और जो users हैं they just has to speak command and जो device हैं that performs the task automatically.
Then useful for accessibility, जो voice controls हैं, they also help visually impaired users to use screen, keyboard और mouse, जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलते हैं for them, so that they can perform various tasks like making calls, sending messages or asking questions by simply speaking. And इसकी जो disadvantages हैं that includes requires strong speech recognition. ये जो devices हैं, these devices must carefully understand what you say. Suppose if speech recognition जो है वो weak होगी, then it may misunderstand words, accents or unclear speeches. And background noise और जो fast talking और जो unclear pronunciation है, that may also cause errors. Then it may also struggle with different accents and background noise. जो voice assistants हैं, that may not understand all the accents clearly, because if there is a background noise like traffic, music or talking, the device हैं that may get confused or that can mishear the commands, which ultimately leads to the errors or incorrect responses. And here are some important here is some important note that you can also remember. जो booting है, it means starting up a computer so that it becomes ready to use, which starts working or function when we press the power button or when we press the restart button using a software command, जहाँ computer जो है that loads the operating system from storage into RAM so that we can start working. And there are mainly two types of booting: cold booting, which means starting the computer after when computer is completely shut down and powered off, and it happens when we press the power button to turn on the computer from off state. And जो system है that starts fresh, that loads everything from beginning. And warm booting जो है, it means restarting a computer without turning off the computer. It happens when we use restore option or when we press control plus alt plus del keys, जहाँ computer जो है that reloads the operating system but does not fully power off. We had also discussed about booting in previous videos. अगर आपने उन videos को नहीं देखा, आप जाके उनको also देख सकते हैं. Now let's move to another topic, that is some important operating systems. As हमने earlier video में discuss किया about the different types of operating system, among them कई operating systems जो हैं वो हमें essential देखने को मिलते हैं, जो कि हम commonly use करते हैं in our day to day life. And ये जो operating systems है, these includes first जो है that is Microsoft Windows, जो कि हमें one of the most popular operating system देखने को मिलता है in the world, जिसको develop किया by Microsoft in the year 1985. एंड इसके जो की फीचर्स हैं that are GUI बेस्ड, जो कि यूज़ करता है विंडोज़ आइकन्स, मेनूज एंड बटन्स फॉर इजी नेविगेशन. दैन यूज़र फ्रेंडली, जो कि हमें बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है टू यूज़ फॉर बिगनर्स विथ इजी कंट्रोल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड पॉइंट क्लिक एक्शंस. दैन मल्टीटास्किंग, जो कि ऑल्सो अलाउ करता है यूज़र्स को टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस एट अ सेम टाइम लाइक ब्राउज़र, वर्ड एंड म्यूजिक प्लेयर. देन वाइड सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी, जो कि ऑल्सो सपोर्ट करता है लार्ज वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूडिंग गेम्स, ऑफिस एप्स, ब्राउजर्स एंड डिज़ाइन टूल्स. एंड इसकी जो पॉपुलर वर्जन्स हैं दैट आर विंडोज़ XP, जिसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 2001, जिसको जाना जाता है फॉर स्टेबिलिटी एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. दैन विंडोज़ 7, इसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 2009, जो कि हमें बहुत ही पॉपुलर देखने को मिलता है फॉर इट्स स्पीड, रिलायबिलिटी एंड सिंपल डिज़ाइन. दैन विंडोज़ 10, जिसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 2015 विथ फीचर्स लाइक बेटर सिक्योरिटी, रेगुलर अपडेट्स दैट वर्क्स ऑन बोथ PCs एंड टैबलेट्स. एंड विंडोज़ 11, जिसको रिलीज़ किया गया इन 2021 विथ मॉडर्न लुक, राउंडेड कॉर्नर्स, सेंटर्ड स्टार्ट मेनू, बेटर परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग फीचर्स. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि हम यूज़ करते हैं एट आवर होम्स फॉर वेरियस टास्क्स लाइक ब्राउजिंग, वाचिंग वीडियोज, स्टडिंग और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. दैन बिजनेसेस, especially in offices, we use these computers for data entry, presentation emails, accounting and personal softwares, professional softwares. Then in gaming, it also support huge range of PC games with
high quality graphics and performance, and in servers like Windows server versions जो हैं उनको यूज़ किया जाता है for managing web hosting networks, databases and cloud services. सेकेंड इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ मैक ओ एस. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया बाय एप्पल INC फॉर एप्पल कंप्यूटर्स लाइक मैकबुक, iMac एंड मैक मिनी. एंड इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया इन द ईयर 1984 एज ए मैकिंटोश सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको लेटर नाम दिया गया एज मैक ओ एस इन 2016. एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स आर स्मूथ GUI. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें बहुत ही अट्रैक्टिव, क्लीन और इजी टू यूज़ देखने को मिलता है. इसकी जो इंटरफेस है दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज़ क्लीन एंड दैट इज़ वेरी easy to use with dog finder and menus. Then Unix based, it was basically built on the Unix foundation, which makes it stable, reliable and more secure. Then high security, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर एप्पल हार्डवेयर. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट वर्क परफेक्टली विद द एप्पल डिवाइसेस लाइक मैकबुक्स, iMac, iPhone एंड iPad फॉर द सीमलेस एक्सपीरियंसेस. एंड इसकी जो पॉपुलर वर्जन्स हैं दैट आर मैक कैटालिना, जिसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 2019, जो कि प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड सपोर्ट फॉर 32-bit apps and that also provides improved security. And Mac OS Big Sur, जिसको रिलीज़ किया गया इन द 2020, जो कि हमें मेजर रीडिज़ाइन देखने को मिलता है विथ मॉडर्न लुक्स एंड बेटर परफॉर्मेंस. देन Mac OS Monterey, जिसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 2021 विथ एडेड फीचर्स लाइक यूनिवर्सल कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस विद वन माउस कीबोर्ड. देन Mac OS Ventura, जिसको रिलीज़ किया गया इन 2022, that had introduced Stage Manager for better multitasking and improved productivity tools. एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉमनली यूज़ किया जाता है इन प्रोफेशनल वर्क, स्पेशली इन ऑफिस, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ एंड रिमोट वर्क सेटअप्स. एंड डिज़ाइन इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है, जिसको यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स एंड फोटोग्राफर्स फॉर वेरियस टूल्स लाइक फॉर फाइनल कट प्रो, एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर. एंड इन म्यूज़िक प्रोडक्शन इसको यूज़ करते हैं म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स with the powerful softwares like GarageBand and Logic Pro. And in software development ये हमें popular देखने को मिलता है among developers, especially for creating apps for iPhones, iPads and Mac OS using Xcode. Third important operating system जो है that is Linux. जो Linux है it is a free and open source operating system जिसको create किया by Linus Torvalds in the year 1991. एंड इसकी जो की फीचर्स हैं दैट आर ओपन सोर्स. जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो सोर्स कोड है दैट इज़ फ्री और ओपन टू पब्लिक, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जो है दे कैन व्यू, दे कैन मॉडिफाई और दे कैन शेयर इट. देन हाईली कस्टमाइजेबल, जो यूजर्स हैं दे कैन look the features, they can add functions and they can modify it according to their own needs. Then more secure, ये हमें ऑल्सो लेस प्रोन देखने को मिलता है टू वायरसेस एंड मालवेयर, जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. एंड यूजर फॉर सर्वर्स, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर वेब सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स एंड बिग नेटवर्क्स बिकॉज ऑफ इट स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. एंड इसकी जो पॉपुलर वर्जन्स हैं दैट आर उबुंटू, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन देखने को मिलता है लिनक्स का फॉर बिगनर्स, जो कि हमें मोर यूज़र फ्रेंडली और इजी टू यूज़ देखने को मिलता है. देन फिडोरा, जिसको जाना जाता है फॉर हैविंग द लेटेस्ट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज़. देन डेबियन, जो कि हमें मोर स्टेबल एंड रिलायबल देखने को मिलता है, जिसको ऑफन यूज़ किया जाता है फॉर सर्वर्स. देन रेड हैट RHEL, जो कि बेसिकली एंटरप्राइज लेवल लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हैं बिजनेस एंड कंपनीज. एंड काली लिनक्स विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग. एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सर्वर्स, जो कि
रन करता है मोस्ट वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस सर्वर्स एंड होस्टिंग सर्विसेज बिकॉज ऑफ इट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. देन इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो लिनक्स है, इट पावर्स मेजर क्लाउड platforms like Google Clouds, AWS and Microsoft Azure. एंड इन साइबर सिक्योरिटी इसको यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं एथिकल hackers and cyber security experts with various tools like Kali Linux for networking testing and security checks. And in embedded systems, it also runs smart TVs, routers, cars and IoT devices जहाँ lightweight and जो reliable systems हैं that are needed. फोर इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज यूनिक्स. जो यूनिक्स है इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल एंड मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया बाय केन थॉम्पसन एंड डेनिस रैची एट AT&T Bell Labs इन द ईयर 1969. एंड इसके जो की फीचर्स हैं दैट इंक्लूड्स मल्टी यूज़र. मीन्स ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर बहुत सारे यूज़र्स जो हैं दे कैन वर्क एंड बहुत सारे यूज़र्स जो हैं दे कैन यूज़ दिस सिस्टम एट द सेम टाइम विथ देयर ओन टास्क एंड फाइल्स. देन मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कैन आल्सो रन मल्टीपल टास्क्स और प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग डाउन. देन पावरफुल कमांड लाइन टूल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस जहाँ यूजर्स जो हैं दे कैन परफॉर्म टास्क्स क्विकली बाय यूजिंग कमांड्स. एंड सम ऑफ इट्स पॉपुलर वर्जन्स इंक्लूड IBM AIX जिसको डेवलप किया बाय IBM फॉर देयर सर्वर्स एंड मेन फ्रेम्स. देन HPUX जिसको क्रिएट किया बाय हैवलेट पैकवेयर HP फॉर HP सर्वर्स. एंड सोलारिस जिसको डेवलप किया बाय सन माइक्रो सिस्टम्स जिसको नाउ ओन करते हैं Oracle फॉर हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन एंटरप्राइज सर्वर्स लाइक जो लार्ज कंपनीज हैं दे यूज़ इट टू रन डेटाबेसेस, वेबसाइट्स एंड बिजनेस एप्लीकेशंस. और जो वर्क स्टेशंस हैं दे आल्सो यूज़ it in their powerful computers for various tasks like software development, engineering and research. And in mainframes mainframes इसको also यूज़ किया जाता है in mainframes जहाँ ये रन करता है big powerful computers को to handle large scale data processing for banks, governments and enterprises. फिफ्थ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ एंड्रॉयड. जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको मेड किया गया है फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट टीवीज एक्स्ट्रा. जो कि बेसिकली हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जिसको डेवलप किया बाय गूगल बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल इन द ईयर 2008. एंड इसके जो की फीचर्स हैं दैट इंक्लूड्स मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड. मीन्स ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया गया है टू वर्क परफेक्टली ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस. देन ऐप बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो सपोर्ट मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर गेमिंग, सोशल मीडिया एंड प्रोडक्टिविटी. एंड टच स्क्रीन सपोर्ट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो फुली सपोर्ट्स टच गेस्चर्स लाइक टैपिंग, स्वाइपिंग, pinching and scrolling for easy use. And some of its popular versions are Android 10. ये जो Android 10 है इसको रिलीज़ किया गया in the year 2019 that had introduced dark mode and improved privacy control. And Android 11 इसको रिलीज़ किया गया in the year 2020 with added chat bubbles, notification management and screen recording. Then Android 12 जिसको रिलीज़ किया गया in the year 2021 that brought a new material view design with personalized colors and smoother animations. Then Android 13 इसको रिलीज़ किया गया in the year 2022 जो कि फोकस करता है प्राइवेसी, लैंग्वेज सेटिंग फॉर ऐप एंड इम्प्रूव्ड मीडिया कंट्रोल्स. एंड Android 14 जो है इसको रिलीज़ किया गया in the year 2023 with added battery life, improved security, larger font sizes and more accessibility features. एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन स्मार्टफोन्स जो कि रन करता है ऑन मोस्ट स्मार्टफोन्स लाइक सैमसंग, Xiaomi, Vivo, Oppo और OnePlus. एंड टैबलेट्स जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो पावर्स एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट्स फॉर ब्राउजिंग, गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी. स्मार्ट टीवीज़ जो है इसको आल्सो यूज़ किया जाता है इन एंड्रॉयड टीवीज़ लाइक Sony, MI TV, OnePlus TV फॉर स्ट्रीमिंग एंड एप्स. Then in IoT devices it also run on smartwatches, smart devices, car
एंटरटेनमेंट सिस्टम्स एंड अप्लायंसेस। सिक्स इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज iOS। जो iOS है इट इज़ एन एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईफोन्स, आईपैड्स एंड आईपोड्स, जिसको डेवलप किया है बाय एप्पल इन द ईयर 2007। जो कि हमें आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड इसकी जो की फीचर्स हैं दैट आर सिक्योर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, malware एंड हैकिंग विथ रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। ऐप बेस्ड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट आल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मिलियंस ऑफ एप्स थ्रू द एप्पल ऐप स्टोर फॉर गेमिंग, सोशल मीडिया एंड मोर, and optimized for Apple devices। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it works smoothly and efficiently on iPhones, iPads and other Apple products, जो कि ऑफर करता है seamless experiences। एंड इसकी जो पॉपुलर वर्जन्स हैं that are iOS 14, जिसको रिलीज़ किया गया in the year 2020 that had introduced home screen widgets and app library for better organization। Then iOS 15 इसको रिलीज़ किया गया in the year 2021 that had improved the FaceTime, added focus mode and that improved the better privacy features। Then iOS 16 इसको रिलीज़ किया गया in the year 2022 with lock screen customization, edit and unsend messages and improved notification। Then iOS 16 जो है इसको रिलीज़ किया गया in the year 2023 with added features like name drop for easy contact sharing, improved autocorrect and new stickers and messages। एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन आईफोन्स, जो कि सर्व करता है एज ए मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल आईफोन्स। दैन इन आईपैड्स इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन आईपैड ओएस, जो कि रन करता है आईपैड ओएस विच इज़ बेस्ड ऑन द iOS बट डिज़ाइंड फॉर बेटर स्क्रीन। Then Apple Watch it also works together with iOS on iPhones to control Apple Watch functions। and Apple TV ये also run करता है TV OS which is also based on iOS for streaming movies, shows and apps on Apple TV। 7 important operating system जो है that is Chrome OS। जो Chrome OS है यह हमें one of the simple and fastest operating system देखने को मिलता है जिसको मेड किया गया है फॉर लैपटॉप्स और क्रोम बुक्स। एंड इसको डेवलप किया बाय गूगल इन द ईयर 2011 जो कि हमें बेसिकली लाइट वेट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड लाइट वेट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it runs very fast and smooth even on low power devices like Chromebooks। then cloud based जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it store most of the files and apps online by using Google Drive and cloud services। then web app focused जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it works mainly with web applications and Google services like Gmail, Google Docs, YouTube and Google Meet। एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन Chromebooks, जो कि रन करता है ऑन Chromebook लैपटॉप्स फॉर वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन वर्क एंड बेसिक टास्क्स। एंड एजुकेशन सेक्टर इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज ये हमें ईजी देखने को मिलता है यूज़ एंड वेल एज इट्स ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड सिक्योर फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एंड लाइट वेट कंप्यूटिंग ये हमें ऑल्सो आइडियल देखने को मिलता है फॉर यूजर्स हु मोस्टली डू इंटरेक्ट बेस्ड टास्क लाइक ब्राउजिंग, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स एंड डॉक्यूमेंट एडिटिंग। 8 इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है दैट इज सोलारिस। जो सोलारिस है इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल एंड सिक्योर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया गया है फॉर सर्वर्स एंड एंटरप्राइज कंप्यूटर्स, जिसको ओरिजिनली डेवलप किया बाय सन माइक्रो सिस्टम्स विच वाज नाउ ओन्ड बाय ओरेकल, which is basically a Unix based operating system। and some of its key features include scalable। जो operating system है it can handle small to very large systems from a single computer up to the big enterprise servers। then highly secure जो operating system है it also provides security features including user access control, data protection and network security। and Unix based ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो बिल्ट ऑन ए स्टेबल एंड रिलायबल यूनिक्स फाउंडेशन, जो कि ऑफर करता है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र सपोर्ट एंड पावरफुल कमांड्स लाइक टूल्स। एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन एंटरप्राइज सर्वर्स, जो कि रन करता है लार्ज स्केल बिजनेस सर्वर्स को फॉर बैंकिंग, टेलीकॉम एंड कॉर्पोरेट सिस्टम्स।
क्लाउड कंप्यूटिंग या आल्सो सपोर्ट करता है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को विथ हाई रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। दैन डेटाबेस मैनेजमेंट, इसको आल्सो यूज़ किया जाता है फॉर मैनेजिंग बिग डेटाबेसेस लाइक ओरेकल डेटाबेसेस विच एंश्योर्स फास्ट प्रोसेसिंग एंड डेटा सिक्योरिटी। नाउ 9 फ्री इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज फ्री BSD। जो फ्री BSD है इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स, जिसको डेवलप किया बाय द फ्री BSD project in the year 1993, which is also a Unix like or open source operating system, and some of its key features include Unix like। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिक्स प्रिंसिपल्स, जो कि ऑफर करता है हमें स्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर सपोर्ट। देन सिक्योर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद बिल्ट इन फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। देन ओपन सोर्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ एंड मॉडिफाई, दैट इज सपोर्टेड बाय ए ग्लोबल डेवलपर कम्युनिटी। देन नेटवर्क फोकस्ड, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें ऑल्सो एक्सलेंट देखने को मिलता है फॉर various networking tasks and servers as well as for internet services due to its fast and reliable network performance। एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सर्वर्स जो कि रन करता है वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स एज वेल एज फाइल सर्वर्स को, बिकॉज हमें मोर स्टेबल एंड रियलेबल देखने को मिलता है। नेटवर्किंग, इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs and other companies जो हैं they also use it for routing, firewalls and network management। and security applications, इसको also use किया जाता है for building firewalls, VPNs and secure systems due to its strong security features। now 10th important operating system जो है that is IBM AIX। it stands for International Business Machine Advanced Interactive Executive, which is a Unix based operating system जिसको डेवलप किया बाय IBM इन द ईयर 1986 फॉर IBM सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस। एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड यूनिक्स बेस्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बिल्ड किया गया ऑन यूनिक्स मॉडल, जो कि ऑफर करता है हमें मोर स्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर सपोर्ट एंड हाईली रिलायबल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दीज आर डिज़ाइन टू रन 24/7 विदाउट एनी फेलियर, जो कि हैंडल करते हैं हेवी वर्कलोड्स को एज वेल एज क्रिटिकल ऑपरेशंस को। देन यूज्ड इन क्रिटिकल एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दीज आर आल्सो ट्रस्टेड बाय बैंक्स, जो कि यूज़ करते हैं बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज एंड लार्ज एंटरप्राइजेस फॉर डेटाबेसेस, सर्वर्स एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। एंड इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन लार्ज स्केल बिजनेसेस लाइक बाय बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, हॉस्पिटल्स एंड बिग एंटरप्राइजेस जो हैं दे यूज़ इट फॉर रनिंग क्रिटिकल ऑपरेशंस। एंड मेन फ्रेम्स जो है इट आल्सो powers IBM mainframe servers to handle huge amounts of data and processing tasks। and in industrial computing it is also used in like industries for managing manufacturing systems, data centers and enterprise applications। so guys that's it for today। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कहीं पे डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF you can join the Telegram group। so that's it for today। I hope you find this video informative। don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel। thank you for watching।